Dear student, welcome back to Dr. Shrikant Pharmacy channel. Please like, share, subscribe and hit the bell icon for the latest pharmacy video. So today I came with one more important topic, that is joint stock company. It is one of the example comes under the private enterprises. Okay, in a unit of forms of business organization, it's the subjects will comes as drugstore business management or marketing. So joint stock company are very generally we know that the number of shareholders or share business, it is a very similar to this one. So this joint stock company is mainly across us because of the drawbacks of the sole proprietorship as well as the partnership, where what happen, the finance resources are limited will be there and the managerial will be very less and doubtful in continuing with, and unlimited liability will be there. To eliminate these things, the joint stock company is started. So this is a very much important for the any type of business in a large volume, in a huge amount you required. At the time the joint stock company is placed in the very good important for the financial resources. So let me discuss in this class what are its definition and what are its advantages as well as its major disadvantages. So what is a joint stock company? Joint means joining. Okay, company means more than the 10,000 is called as a company. Okay, so combining of number of more person for investing the any type of business. समझ लिया, 1,000 10,000 जो लोग मिलको एक बिजनेस करते हैं ना, उसको बोलते कंपनी बोलते हैं. वहाँ पे क्या हो जाता है, एक आदमी 1 शेयर 2 शेयर 3 शेयर जो जमा करते हैं ना, उससे क्या हो जाता है, करोड़ों पैसा जमा हो जाता है, उससे बिजनेस करते हैं ना, उसको बोलते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी. सो लेट मी डिफाइन अकॉर्डिंग टू जस्टिस लिंडले, ए जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ many persons who contribute money as well as the money's worth, okay, to a common stock and employ for its common purposes. So that is defined by one of the inventor, Justice Lindley. He said that joint stock company is an association. Association means joining of a many person, joining of a many persons who contribute, means who invest the money, okay, are equivalent to money's worth to a common stock and employ it for the common purposes. So that is called as the definition of Justice Lindley, what is a joint stock company. Let me discuss some are the good advantages of the joint stock company. Okay, so very simple, I told that joint stock company are nothing but the share business, share. Okay, so that will be the major important for raising the fund with the enormous number of the people around the world. Okay, so let me discuss advantages. Huge amount of capital collected from the general public by shares. मतलब क्या, जितना आपको पैसा होना उतना आपको मिल जाता है. जैसे कैपिटल कितना ज़रूरत है उतना शेयर होल्डर्स भी ज़्यादा हो जाता है. एक आदमी 1 शेयर लेता है, 10 शेयर लेते हैं, एक समझ लीजिए 1 शेयर को 1,000 रुपये रहे तो 100 लोगों का 100,000 रुपये हो जाता है. ऐसे इसलिए यहाँ पे क्या हो जाता है, आपको अमाउंट का कुछ भी टेंशन नहीं, बहुत ही अमाउंट आपको कलेक्ट हो जाता है और कौन से भी आप बिजनेस कर सकते हैं. लार्ज इंडस्ट्री वी कैन प्लान इट. जैसे अमाउंट जैसे जमा हो जाता है, बढ़ जाता है, जमा होने से क्या हो जाता है, आपका प्लानिंग भी बड़ा इंडस्ट्री प्लान कर सकते हैं. क्यों बोले तो अमाउंट जो कलेक्ट होता है ना, बहुत ही लोग रहते हैं इसमें, जो भी पर्सन रहता है ना, जस्ट स्मॉल अमाउंट फॉर देम, बट द कंबाइंडली द अमाउंट विल गेट ना, दैट विल बी ए वेरी लार्ज अमाउंट. वी कैन प्लान फॉर n नंबर ऑफ द इंडस्ट्री एंड n लेवल ऑफ द इंडस्ट्री ऑल्सो. इकोनॉमी इन परचेज, मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग. जैसे ही हम लोगों का पैसा ज़्यादा हो जाता है और टर्नओवर ज़्यादा हो जाता है, उसमें प्रॉफिट ज़्यादा होता है. समझ लीजिए परचेज़ करना बोले तो 1 किलो लेने से 100 किलो लिए तो उसका रेट अलग रहता है. समझ लीजिए मैनेजमेंट, 1 लोग काम करने से 10 लोग काम करे तो उसकी अलग रहता है. डिस्ट्रीब्यूशन, एक लोगों को देने से अच्छा एक गाड़ी लेके रख दिया तो और डिस्ट्रीब्यूशन फास्ट हो जाता है. सेलिंग, तो सेलिंग भी बहुत फास्ट ही हो जाता है, जो ऑटोमेटिकली बिजनेस सेलिंग. लायबिलिटी टू शेयर होल्डर लिमिटेड,
लायबिलिटी बहुत ही कम रहता। क्यों बोले तो यहाँ पे क्या रहता है, एक आदमी एक शेयर का एक 10,000 समझ लीजिए, सो 10 लोगों का 1 लाख रुपये हो जाता। सो 10,000 इज नॉट ए गुड अमाउंट, सो एनी पर्सन कैन बी बियर इट, एंड विथ लॉस ऑफ दिस कंपनी विल नॉट बी मच डिफ्रेंसिएशन ऑफ द लिविंग स्टाइल। इसलिए लायबिलिटी बहुत ही कम रहने से क्या हो जाता है, लोगों को टेंशन नहीं, गए तो 10,000 जाता है, आए तो अच्छा आता बोल के ऐसा सोचते हैं। एनी शेयर होल्डर कैन सेल आर बाई डिजायर्ड नंबर ऑफ शेयर्स। कोई भी शेयर होल्डर कभी भी आप बेच सकते हैं, आपका पैसा आप ले सकते हैं, और कोई भी शेयर होल्डर कितना भी नंबर ऑफ शेयर्स भी ले सकते हैं। इसमें कुछ लिमिटेड नहीं है, आपको कितना होना, आपके पास कितना पैसा, आपको विश्वास कितना है उतना आप अमाउंट शेयर कर सकते हैं। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ मेंबर्स इन जॉइंट स्टॉक कंपनी, कि इधर कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे समझ लीजिए पार्टनरशिप में 20 मेंबर्स मोर देन वी कैन नॉट मेक एज एन पार्टनर। यहाँ पे क्या 20 मेंबर रहने दो, 2,000 रहने दो, 2 लाख रहने दो, कुछ भी फर्क नहीं रहता है इसके लिए। ओके, इट स्टिमुलेट द जनरल पब्लिक हैबिट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। जैसे ये जॉइंट स्टॉक कंपनी है ना, इससे क्या हो जाता है, लोगों को एक सेविंग स्टार्ट हो जाता है। मतलब ये कंपनी में हम लोग शेयर लिया, उसको महीने महीने इतना देना है, सो जैसे जैसे महीने महीने बढ़ जाता है तो उनका अमाउंट भी एक सेविंग भी हो जाता है, एक इन्वेस्टमेंट हो जाता है, कभी ज़रूरत पड़े तो एक साथ उनका अमाउंट मिल जाता है। सो इसलिए इसके लिए ये बोलते हैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट का एक हैबिटेशन हो जाता है लोगों के लिए, नहीं तो फजूल खर्चा करके जो ऐसो पैसा भी वेस्ट कर लेते हैं। रिस्क डिवाइडेड अमॉन्ग द नंबर ऑफ शेयर होल्डर। यहाँ पे कुछ भी लॉस हुआ, कंपनी बंद हुआ, कंपनी के से लॉस हुआ बोले तो सभी शेयर होल्डर को लॉस हो जाता है। तो जितना लॉस होता है, 10 समझ लीजिए 10,000 इन्वेस्टमेंट किया, आपका 2,000 लॉस हुआ, 8,000 आपका पैसा आ जाता है। ऐसा लॉस होने से आपको कुछ भी नुकसान नहीं होता। क्यों बोले तो हज़ारों लोग शेयर होल्डर रहते हैं, वो यदि एक आदमी का 2,000 गए तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए रिस्क बहुत कम रहता है। नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ ऑफ द शेयर होल्डर। अब समझ लीजिए कोई शेयर होल्डर है, वो एक आदमी शेयर होल्डर मर गया तो भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में रहने दो, क्या हो जाता है, एक ही ओनर रहता है, अगर एक ओनर मर गए बोले तो उसका दुकान बंद होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। वो चीज़ यहाँ पे नहीं रहता, कोई मरो या कोई जियो उसमें कुछ भी फर्क नहीं रहता। द कंपनी विल बी रनिंग एज यूजुअल, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस रहता है। और little bit the disadvantages of the joint stock company will discuss one by one. Difficult to form company because formalities are more, because ये सोल प्रोप्राइटर रहने दो, पार्टनरशिप क्या होता है, एक आदमी रहे तो एक बिजनेस कर सकते हैं, अगर 2 से ज़्यादा लोग रहे तो एक पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकते हैं। यहाँ पे तो बहुत ही लोग होना पड़ता है, 1,000, 10,000, 20,000 जैसे लोग होना पड़ता। उसके अलावा यहाँ पे क्या हो जाता है, शेयर होल्डर का जो भी शेयर लेना बोले तो बहुत ही डॉक्यूमेंट करने के लिए लीगल फॉर्मेलिटी ज़्यादा रहता है, इसलिए तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता। फॉर्मेलिटी रहने से लोग क्या हो जाते हैं, थोड़ा घबरा जाते हैं, तो इसलिए लीगल फॉर्मेलिटी ज़्यादा रहने से ये कंपनी बनाने में बहुत तकलीफ रहता है। शेयर होल्डर और एक्चुअली ओनर, एक्चुअली क्या हो जाता है, जैसे ही हम लोग कुछ अमाउंट देते बोले तो उसका भी हम ओनर हो जाते हैं। जैसे समझ लीजिए पार्टनरशिप फर्म में क्या हो जाता है, कुछ भी इन्वेस्ट करे तो उन्हें भी एक ओनर रहते हैं, 20 लोग रहे तो 20 में इन्हों भी ओनर रहता है। अगर इधर क्या हो जाता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी ऐसी चीज़ नहीं रहता, सो हज़ारों लोग रहते शेयर होल्डर विल नॉट बिकम एज एन सभी लोग ओनर ऑफ द कंपनी, और शेयर होल्डर उतना ही होते हैं वो लोगों का। डायरेक्टर, मैनेजर्स, एम्प्लॉयज आर सैलरीड्स नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट। यहाँ पे क्या हो जाता है, जो भी काम करने वाले डायरेक्टर समझ लीजिए, मैनेजर समझ लीजिए, एम्प्लॉय समझ लीजिए, वो लोग सैलरी बेस्ड ले वो कंपनी में काम करते रहते, वो लोगों को उतना इंटरेस्ट नहीं रहता कंपनी डेवलप करने के लिए। पहला रहता है सैलरी अच्छा दिए तो अच्छा काम करते, सैलरी नहीं दिया तो अच्छा नहीं करते। उससे क्या हो जाता है, जो जॉइंट कंपनी स्टॉक रहता है ना, उतना डेवलपमेंट नहीं होता। जो भी मैनेजर डायरेक्टर अगर एक्टिव रहे तो अच्छा काम करते रहे तो क्या हो जाता है, ये कंपनी भी बड़प्पन आ जाता है, नहीं तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब समझ लीजिए वो सोल प्रोप्राइटर रहने दो, पार्टनरशिप रहने दो, पूरे लोग अपने इंटरेस्ट से खुद हाँ के बिजनेस में एंट्री कर दिया तो एक्टिविटी में, सो जो उनका बिजनेस रहता है बहुत बढ़िया रहता है। यहाँ पे कुछ भी नहीं रहता, ओनर कौन रहता है, ओनर क्यों भी नहीं रहता कोई, ऐसे ही शेयर होल्डर रहने से क्या हो जाता है, किसी को डिसीजन लेने में बहुत लिमिटेड रहता है। नो मीटिंग टू शेयर होल्डर, जैसे समझ लीजिए पार्टनरशिप में 20 लोग रहते हैं, एक नोटिस दिया तो 10 मिनट में सभी लोग मिलकर कोई डिसीजन लेना है, कुछ डेवलपमेंट करना है, कुछ निकालना है, डालना क्या करना है बोले तो ये आसान से कर सकते मीटिंग करके।
यहाँ पे क्या हो जाता है, कुछ भी मीटिंग ही नहीं रहता, शेयर होल्डर का क्या रहता है, शेयर डालना बैठ जाना, जो भी डिसीजन रहते हैं वो कंपनी वाले लेते, जो वो लोग लेते उसका पालन करना के एक ही रहता है, इसमें कोई भी वॉइस नहीं रहता और कुछ अच्छा बुरा बोलने के लिए भी कुछ भी नहीं रहता। सो इसलिए नो मीटिंग टू द शेयर होल्डर। समटाइम बोगस कंपनीज इज फॉलोड इन द मार्केट। ये तो आपको मालूम है, आजकल पैसा 10 रुपये को 10 रुपये ज़्यादा देते बोले तो लोग बढ़ जाते हैं, वहीं पे जाना शुरू करते हैं। ऐसे बहुत कंपनी बोगस कंपनी रहता है, बोगस नाम रख के लोगों का पैसा जमा करने का एक लोग सोचते रहते, 1 साल अच्छा बनाते, 2 साल अच्छा बनाते, 3 साल अच्छा बनाते, चौथे 5वें साल में कंपनी बंद हो जाता, पूरा पैसा लूट को चले जाता। ऐसे चांसेस बहुत रहते हैं यहाँ पे जॉइंट स्टॉक कंपनी। क्यों बोले तो औरता लोग रहते हैं, 100 को 100 पैसा देते हो बोले तो उनका सोने भी बेच को वो लोग ले वहाँ पे डालने के लिए रहते हैं। सो ऐसे पागल जैसा बोगस लोग कंपनी बहुत रहता है। सो इसलिए विश्वास ज़्यादा लोगों को नहीं रहता, समझदार लोगों को ऐसे चीज़ों में नहीं जाते, नहीं समझने वालों को ऐसे जाके लॉस होने का चांसेस रहता है। डिफ़िकल्ट टू वाइंड अप द कंपनी बिकॉज ऑफ द लॉन्ग टाइम एंड कंज्यूमिंग द प्रोसीजर। यहाँ पे क्या हो जाता है, जैसे कंपनी बनाने में कितना टाइम लगता है उसी तरह से कंपनी को बंद करना बोले तो भी बहुत ही लीगल फॉर्मेलिटी रहता। क्यों बोले तो हज़ारों लोग शेयर होल्डर रहते हैं, उनके हिसाब से उनको सही सलामत से देना बोले तो थोड़ा मुश्किल ही हो जाता है। यू कैन नॉट क्लोज, जैसे समझ ले सोल प्रोपरेटर, आज बंद होना है दुकान बोले तो बंद करते, आज चप्पल का दुकान है कल फूल का दुकान, ऐसा बना ले सकते, लेकिन यहाँ पे नहीं रहता। जो भी रहता है लीगल फॉर्मेलिटी ज़्यादा रहने से सिस्टमेटिक्सली जाना पड़ता है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उसकी जो रजिस्ट्रेशन पॉलिसी टर्म्स रूल्स क्या रहता है उसके कंप्लीट करना बोले तो थोड़ा बहुत मुश्किल रहता है। मैं समझता हूँ ये क्लास से आपको बहुत ही सरल से जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है, जनरली हम लोग क्या बोलते हैं इसको, शेयर्स बोलते हैं, कैसा इसका advantages towards the earlier sole proprietorship. Okay, so in this class we learned the definition, advantages and disadvantages of the joint stock company. This is also very much important in examination, many time asked for the big question. Hopefully you understand this video very clearly. Thank you very much for watching this video.